Hello students, collision lecture number 4. In first 3 lectures students we discuss elastic collision, inelastic collision with theory plus MCQ. Now perfectly inelastic collision theory plus MCQ lecture. Chalo, so what is the meaning by perfectly inelastic collision? Chalo, so perfectly inelastic collision means students, suppose before collision M1 is moving with the speed U1. M2 is moving with the speed U2. But after collision, both bodies stick together and moving with a common velocity. Okay, this is the meaning as a perfectly inelastic collision. In the case of perfectly inelastic collision, after collision both bodies stick together and moving with common velocity. Okay, after both the bodies moving with the common velocity, there is no relative velocity. After the collision both the bodies stick together and moving with the common velocity. Again students, here in any type of collision external force is zero, so again momentum P is conserved, means initial momentum equals to final momentum. Same here, it is again inelastic collision. See what is the difference between inelastic collision and perfectly inelastic collision. Common point in the case of inelastic collision and perfectly inelastic collision, common point is in both the collision momentum conserved. But students, in the case of both collision inelastic and perfectly inelastic, in both the collision kinetic energy is not conserved. Okay, what is the difference in the case of inelastic collision? After the collision both bodies are moving with the both bodies are moving with the different velocity, but here both the bodies are moving stick together and moving with the common velocity. Clear hai? In the case of perfect inelastic collision, after the collision both the bodies are combined, stick together and moving with the common velocity. This is known as perfectly inelastic collision. And see what is the formula for it. Before the collision, M1 is moving with speed U2, M2 is moving with speed U2. This is the before collision. And after the collision, after the collision, both bodies are combined and moving with the common velocity v. Both bodies are combined and moving with the common velocity v. So here what is the formula? Again momentum is conserved, so initial momentum and final momentum. Initial momentum, both bodies are moving m1 u1 plus m2 u2. If both bodies are moving in opposite direction, then we write here minus. In final, both the bodies are combined, so we write m1 plus m2 and moving with the common velocity v. Chalo, okay. In the final case, see if here both are moving in opposite direction, then here we write minus. But in the case of final, both are combined, so we write what? M1 plus M2 into V. Okay, and students, for the case of perfectly inelastic collision, E is 0. For the perfectly inelastic collision, coefficient of restitution 0. Why? What is the formula for the coefficient of restitution? E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. But see, V2 minus V1 is a relative velocity. But students, see, after the collision, both bodies are moving with a common velocity V. So here we write V minus V. Why V minus V? Because both the bodies are moving combined and moving with the common velocity. So V minus V 0. So elastic collision में E is 1
इनइलास्टिक कोलिजन हो तो E is 0 to 1, between 0 to 1, और perfectly inelastic collision में E is 0. So now loss in a kinetic energy during perfectly inelastic collision. Loss in a kinetic energy during perfectly inelastic collision. So perfect inelastic collision. So after the collision, both the bodies stick together and moving with the common velocity. Now, what is the formula for the loss in a kinetic energy? Delta K means loss in a kinetic energy. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंपल याद रखो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. ऐसे याद रखो, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर. सो एम इज रिप्लेस्ड बाय m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. v इज रिप्लेस्ड बाय v1 माइनस v2. स्क्वायर तो आता ही है काइनेटिक एनर्जी में. कैसे याद रखोगे? अगेन आई रिपीट, ये जो है आपको जो स्पीड लेना है वो इनिशियल लेना है u1 माइनस u2. इनिशियल स्पीड लेना है, फाइनल की जरूरत नहीं है. लॉस की शॉर्टकट है. व्हाट इज द perfectly in the case of perfectly inelastic collision, students, in the case of perfectly inelastic collision, what is the formula for the loss in a kinetic energy? It is a loss in a kinetic energy during whole the system. ये पूरा सिस्टम m1 और m2 कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा ड्यूरिंग परफेक्टली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा. क्या लॉस होगा? फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? सिंपल याद रखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. अगर लॉस आए तो m इज रिप्लेस बाय m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v इज रिप्लेस बाय u1 माइनस u2. और फॉर्मूला में स्क्वायर तो ही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. इफ बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे. देखो यहाँ पे ऐसा हो कि बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपको u1 पॉजिटिव लेना है, लेकिन u2 क्या लेना है? नेगेटिव. तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. इफ बोथ आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट. ठीक है, चलो. और ये काइनेटिक एनर्जी लॉस कौन करेगा? ये दोनों लॉस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मूव हो रहे हैं, तो ये दोनों की लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. चलो, सो नाउ वी डिस्कस द PYQ. चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नीट 2024. फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2024. Two bodies A and B. Two bodies A and B of the same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. हाँ, और ये भी स्टूडेंट्स फॉर्मूला कब होगा? जब वन डायमेंशन हो, मतलब हेड ऑन. कौन सा कोलिजन होना चाहिए? हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन मीन्स व्हाट? आफ्टर द कोलिजन डायरेक्शन ऑफ लाइन इज नॉट चेंज, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. देखो, लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. ओके, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल. चलो, सो नाउ two bodies A and B of the same mass. चलो, before the collision लिख देते हैं. before the collision mass same. चलो, mass same m, यहाँ पर भी m. Two bodies A and B of the same mass undergo completely inelastic collision. Completely inelastic means after the collision both the bodies are combined. The body A, ये body A है, ये body B है. The body A moves with the velocity v1. चलो, इसकी वेलोसिटी क्या दिया है? v1. while the body B is rest. इनिशियल बॉडी V क्या है? रेस्ट. तो उसकी वेलोसिटी 0 बिफोर द कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? बोथ द बॉडीज आर स्टिक टुगेदर. क्यों? क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ये A और B दोनों बॉडी क्या हो गए? कंबाइन. चलो, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन. ये पूरे सिस्टम की कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी है? v2. चलो, द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2, द रेशियो ऑफ v1 by v2. चलो, क्या होगा? कौन सा लॉ होगा? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम. क्योंकि एनी टाइप ऑफ कोलिजन एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो मोमेंटम इज कंजर्व. तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, चलो, इनिशियल में तो ए ही मूव हो रहा है, mv1, ये तो रेस्ट में है. फाइनल में दोनों कंबाइन हो गए. दोनों कंबाइन हो गए क्योंकि कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है, तो फाइनल में दोनों कंबाइन. तो मास कितना हो गया? 2m. m प्लस m 2m. चलो, mm कैंसल. व्हाट इज द रेशियो फॉर v1 by v2? चलो, 2/1. आसान था? बिल्कुल आसान है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो, ये है JEE मेन 2023. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v. चलो, बिफोर द कोलिजन ये m कितनी स्पीड से मूव हो रहा है? v. कोलाइड विथ अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m. ये 2m क्या है? स्टेशनरी.
After collision, they stick together. Stick together means completely inelastic collision, perfectly inelastic collision. Stick together and continue to move together with a common velocity. Chalo, so after the collision, suppose they are moving together, stick together and moving with a common velocity. Suppose वो हम बोल देंगे v dash, कुछ भी लिख सकते, हमने लिखा है v dash. आपको वही फाइंड करना है. Together they stick together and continue to move together with what velocity. चलो वापस लगा दो कंजर्वेशन. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल. इजी है, करो अपने आप आ जाएगा. कितनी है इसका मोमेंटम m इंटू वी. 2m तो रेस्ट में है तो 0. फाइनल में दोनों कंबाइन हो गए तो m प्लस m 3m. क्या हुआ कॉमन वेलोसिटी का आंसर? v/3. चलो इजी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल ब्लॉक के लिए है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट में है मल्टीपल ब्लॉक्स. चलो ऐसा क्वेश्चन एक बार जेडब्ल्यू में आया है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा. ये है IIT 2019 का क्वेश्चन. IIT 2009 सेम क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया था. ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा. यहाँ पे भी है. चलो 3 ऑब्जेक्ट A, B and C are kept in a stationary line on a frictionless horizontal surface. ये ब्लॉक है स्टूडेंट्स. ये ब्लॉक है A, B और C. मास है m, 2m और m. द ऑब्जेक्ट A मूव टूवर्ड्स B. चलो पहले क्या हो रहा है, ये 3 ऑब्जेक्ट है लेकिन फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 2 ऑब्जेक्ट A और B. द ऑब्जेक्ट A मूव टूवर्ड्स द B. ये ऑब्जेक्ट A है, ये मूव हो रहा है टूवर्ड्स द B विथ व्हाट वेलोसिटी? 9 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जेक्ट A का मास है m, B के लिए है 2m. तो पहले 3 ब्लॉक है. पहले कौन कोलाइड कर रहा है? A एंड B. ऑब्जेक्ट A मूव टूवर्ड्स B विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है. A और B में कौन सा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक. चलो तो हम पहले क्या करेंगे, B की वेलोसिटी फाइंड करो, क्योंकि बाद में ये B क्या करेगा, किसके साथ कोलाइड करेगा? देखो 3 ब्लॉक है, A, B और ये है C. पहले कौन कोलाइड करेगा? फर्स्ट A इज मूविंग. आफ्टर द कोलिजन B इज मूविंग. और फिर वो किसके साथ कोलाइड होगा? C के साथ. पहले कौन मूव हो रहा है? A. वो किसके साथ एक्सपीरियंस करेगा कोलिजन? B के साथ. कौन सा कोलिजन है? A और B के बीच में? इलास्टिक. फिर B आगे जाएगा और किसके साथ कोलाइड करेगा? C के साथ. तो हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड करना होगा? B की. Thereafter B makes an completely inelastic collision. B और C के बीच में कौन सा कोलिजन है? completely inelastic. B और C के बीच में complete inelastic collision है. All the motion occurs on the same straight line. Find the final speed of the object C. चलो तो हमें पहले किसकी स्पीड फाइंड करनी होगी स्टूडेंट्स? पहले हमें फाइंड करना होगा B का स्पीड. चलो फर्स्ट वी फाइंड द स्पीड ऑफ B, क्योंकि B किसके साथ कोलाइड हो रहा है? C के साथ. तो हमें B की स्पीड फाइंड करनी होगी. आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द स्पीड ऑफ B? ये बिफोर द कोलिजन है. चलो ये बिफोर द कोलिजन, ये बिफोर द कोलिजन. हमें कब फाइंड करना होगा? आफ्टर. सपोज आफ्टर द कोलिजन हमें किसकी स्पीड फाइंड करनी है? B की, क्योंकि B किसके साथ कोलाइड हो रहा है? V2 के साथ. B किसके साथ कोलाइड होगा? C के साथ. सपोज आफ्टर द कोलिजन B की स्पीड क्या है? V2. इसको हम क्या बोलेंगे? U1. ये तो रेस्ट में था तो U2 0. बिफोर द कोलिजन स्पीड होता है U1 U2. हमें किसकी फाइंड करना है? सब इसकी स्पीड भी होगी V1, लेकिन हमें किसके स्पीड फाइंड करना है? B की, क्योंकि B किसके साथ कोलाइड होगा? फिर C के साथ. तो आफ्टर द कोलिजन व्हाट इज द स्पीड ऑफ B? V2. क्या था इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला? याद करो. इलास्टिक कोलिजन हो, A और B के बीच में क्या है? इलास्टिक कोलिजन हो तो V1 और V2 का फॉर्मूला आपको करवाया था मैंने. हमने बोला था 2 हो तो 2 से स्टार्ट करो. इट इज द फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट्स. A और B के बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक. क्यों हम B की स्पीड फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि B किसके साथ कोलाइड होगा? फिर C के साथ. चलो तो अगर 2 हो तो 2 से स्टार्ट करो. ओके चलो आसान है. ये तो बिफोर द कोलिजन, B तो क्या था? रेस्ट में. तो U2 0 पूरा निकल गया. M1 क्या है? M1 मींस A, उसका मास है m. उसकी स्पीड कितनी थी? 9. टोटल मास A और B का कोलिजन m प्लस m. चलो तो 3m कैंसल, mm कैंसल. 18/2 मींस 3. तो अभी B किसकी वेलोसिटी के साथ आगे जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड. चलो ड्रॉ करो डायग्राम.
वापस डायग्राम बना दो। अभी ये बी कितनी स्पीड से मूव हो रहा है 6 और किसके साथ कोलाइड हो रहा है सी के साथ। बी का मास क्या है 2m, सी का मास क्या है m। लेकिन बी और सी के बीच में कौन सा कोलिजन हो रहा है देखो बी और सी के बीच में देयर आफ्टर बी मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद सी। बी और सी के बीच में कौन सा कोलिजन है इन इलास्टिक। तो आफ्टर द कोलिजन ये बिफोर है ये बिफोर है बिफोर द कोलिजन सी रेस्ट में है बी मूव हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। बी और सी के बीच में कौन सा कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक मींस आफ्टर द कोलिजन बी एंड सी स्टिक टुगेदर बी एंड सी स्टिक टुगेदर एंड मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v। ए और बी के बीच में इलास्टिक कोलिजन बी और सी के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक बी मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद द सी। इट मींस आफ्टर द कोलिजन बी और सी क्या हो गए स्टूडेंट्स कंबाइन when moving with the common velocity v। चलो लगा दो कंजर्वेशन लगा दो कंजर्वेशन। चलो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बी का है क्या होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। बी का मास है 2m उसकी वेलोसिटी है 6। फाइनल में टोटल मास कंबाइन हो गए आफ्टर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन बी रेस्ट सी रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ बी का होगा मास क्या है 2m वेलोसिटी 6। फाइनल में दोनों कंबाइन हो गए तो 2m प्लस m टोटल मास 3m वेलोसिटी v। चलो तो mm कैंसल 6 into 2 12 12 by 3 4। चलो स्टूडेंट सेम एक ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है जेडब्ल्यू का। चलो ये सेम क्वेश्चन है जेडब्ल्यू 2021 में भी आया था यही क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में पहले है इलास्टिक कोलिजन फिर बी और सी के बीच में है कंप्लीटली इनइलास्टिक। ट्राई करो वीडियो पॉज करके ट्राई करो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है जेडब्ल्यू 2021 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 टू बॉडीज ऑफ मास 0.1 kg। चलो बिफोर कोलिजन m1 ये m2 m1 का मास क्या है 0.1 kg m1 0.1 kg m2 0.4 kg। मूव टूवर्ड्स ईच अदर ये डिफरेंट क्वेश्चन मूव टूवर्ड्स ईच अदर ये है u1 ये है u2। मूव टूवर्ड्स ईच अदर विथ अ वेलोसिटी u1 हमने 1 लिया तो u2 हमने लिया माइनस। क्यों माइनस लेंगे u2 बिकॉज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है u1 हम क्या लेंगे माइनस। क्यों माइनस बिकॉज मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। चलो तो we take u2 negative because moving towards each other after the collision they stick together means कौन सा collision है perfectly inelastic। देखो इसके क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं तो combine and moving with the common velocity। चलो after the collision they stick together in a 10 second and then combined mass travels। चलो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले उसका कॉमन वेलोसिटी निकाल दो। सपोज कॉमन वेलोसिटी होगा v। चलो कैसे फाइंड करोगे बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा कंजर्वेशन इनिशियल फाइनल m1 u1 माइनस लिया है why we take माइनस बिकॉज बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइनल में तो कंबाइन हो रहा है तो दोनों का मास ऐड कर दिया कॉमन वेलोसिटी है v कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन m1 है 0.1 उसकी वेलोसिटी है 1 m2 है 0.4 उसका वेलोसिटी है 0.1। चलो m1 प्लस m2 दोनों का मास ऐड करो 0.1 प्लस 0.4 इंटू v 0.1 माइनस 0.04। चलो तो ऐड कर दो 0.1 माइनस 0.04 0.5 so v is equal to 0.06 डिवाइड बाय 0.5। कितनी स्पीड आई कॉमन वेलोसिटी 0.12। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हमें क्या फाइंड करना है कंबाइंड बॉडी का आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर इन 10 सेकेंड द कंबाइंड मास ट्रैवल। ये आंसर नहीं है देखो देखना ये नहीं है तो कॉमन वेलोसिटी हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है कंबाइंड मास का डिस्टेंस द कंबाइंड मास ट्रैवल डिस्टेंस फाइंड करना है मीटर।
कंबाइंड मास कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अभी कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 0.12, टाइम है 10, तो आंसर है 1.2। याद रखना, अगर कंबाइंड वेलोसिटी पूछा होता तो कॉमन वेलोसिटी तो 0.12 आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 × 10⁻³ kg। चलो ये बिफोर द कोलिजन m1 क्या है, m1 5 × 10⁻³ kg, 5 × 10⁻³ kg मूविंग विद द स्पीड u1 है 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विथ अ बॉडी ऑफ मास 15 × 10⁻³ kg। यह है एम्स 2019 का क्वेश्चन। इन इलास्टिकली एंड स्टिक टू इट, मींस स्टिक टू इट मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, स्टिक टू इट मींस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और ये जो है कोलाइड्स विथ अ बॉडी ऑफ मास इन इलास्टिकली है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन रेस्ट में होगा, यहाँ पे इन रेस्ट लिखना है आपको। ये जो सेकेंड बॉडी है वो कहाँ पे है, रेस्ट में है, रेस्ट। सेकेंड बॉडी कहाँ पे है, कोलाइड विथ अ बॉडी ऑफ मास 15 × 10⁻³ kg, इन वो जो सेकेंड बॉडी है वो कहाँ पे है, रेस्ट में है, और दोनों कंबाइन हो गए। आफ्टर द कोलिजन स्टिक टू इट मींस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या फाइंड करना है, लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी। चलो कौन सा फॉर्मूला आएगा, लॉस इन अ काइनेटिक एनर्जी हो तो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो तो कौन सा फॉर्मूला, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2। क्यों ये फॉर्मूला लगाया, कौन सा कोलिजन है ये, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि स्टिक टू इट और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। m1 क्या है 5 × 10⁻³ m2 15 × 10⁻³, दोनों का एडिशन क्या होगा, m1 प्लस m2 का एडिशन 20 × 10⁻³ u1 व्हाट इज u1 2, व्हाट इज u2 0। चलो फाइनल आंसर 5 × 15 × 5 75 × 10⁻⁶, ये 4 × 10⁻⁴, 40 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻⁴, यहाँ पे भी 4, चलो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा हमारा, हमने क्या फाइंड करना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन किलो जूल। चलो तो आंसर क्या आया 75 × 10⁻² जूल, तो हम क्या लिखेंगे 7.5 किलो जूल। चलो एकदम आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको तो आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये भी 2 बार आ गया, देखो एम्स और AIPMT में, मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 36 km/h, 36 km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा 5/18, आपको 10 लेना है। हेड ऑन कोलिजन विथ अ स्टेशनरी बॉल ऑफ अ मास 3 kg, इफ आफ्टर द कोलिजन द 2 balls मूव टूगेदर, मींस कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या फाइंड करना है आपको, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्या फाइंड करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वही फॉर्मूला आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो क्या आता है, डेल्टा के मींस लॉस की फॉर्मूला हाफ mv², m इज रिप्लेस बाय m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, v इज रिप्लेस बाय, चलो ट्राई करना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये भी हम शॉर्टकट से करने वाले हैं, वरना बहुत ही डिफिकल्ट है ये भी क्वेश्चन। चलो ब्लॉक्स ऑफ मास m, 2m, 4m एंड 8m आर अरेंज इन अ लाइन ऑफ अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, मींस ये दोनों ये की बात कर रहे हैं, m, 2m, 4m और 8m arranged in a line on a frictionless floor. Another block of mass m means ये वाला, another block of mass m moving with the speed v along the same line. ये 4 blocks है, m, 2m, 4m और 8m, ये सभी रेस्ट में थे। एक ब्लॉक है जो मूव हो रहा है, कौन सा है ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो मूव हो रहा है, कितनी स्पीड से ये ब्लॉक मूव हो रहा है, ये वाला
ये जो ब्लॉक है वो मूव हो रहा है कितनी स्पीड से v, और सबके साथ टर्न बाय टर्न अभी होगा कॉलिशन। चलो, मूविंग विद द स्पीड v along the same line collides with mass m in perfectly inelastic manner। चलो, पहले किसके बीच में कॉलिजन होगा? ये दोनों के बीच में। कौन सा कॉलिजन? इन इलास्टिक। ऑल द कॉलिजन्स आर आल्सो परफेक्टली इन, सभी कॉलिजन इन इलास्टिक है। मींस पहले कौन कोलाइड करेगा? फर्स्ट कोलाइड m और m, ठीक है, फर्स्ट कोलाइड m और m, ये दोनों स्टिक टुगेदर क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक। फिर ये दोनों 2m, ये दोनों का मास ऐड हो जाएगा, परफेक्ट इलास्टिक है, तो ये दोनों कंबाइन होके किसके साथ कोलाइड करेंगे? ये थर्ड के साथ। फिर ये फर्स्ट 3 कंबाइन होंगे, किसके साथ कोलाइड करेंगे? 4m के साथ, फिर 8m। सभी कोलिजन क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, सभी कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक। पहले ये दोनों कोलाइड हो गए तो दोनों कंबाइन हो जाएगा, कितना मास है? 2m हो गया, ये दोनों कंबाइन होके कितना मास हो गया? 2m। फिर ये 2m किसके साथ कंबाइन होगा? थर्ड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक का भी मास क्या है? 2m। फिर ये भी दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4m, ये भी कंबाइन हो गए, परफेक्टली इनइलास्टिक। फिर ये 4m है वो किसके साथ कोलाइड करेगा? अनदर 4m के साथ, फिर वो भी क्या हो जाएगा? कंबाइन, तो क्या हो जाएगा? 8m। और लास्ट में भी क्या है? 8m। सभी कोलिजन क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक, सभी कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है। चलो, तो क्या करोगे? सभी कोलिजन परफेक्ट। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था 3 ब्लॉक का, उसमें ए और बी के बीच में कौन सा कोलिजन था? इलास्टिक। फिर बी और सी के बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक, लेकिन यहाँ पे सभी कोलिजन कौन से हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक। चलो, तो अभी आप क्या करोगे? कैसे सोल्व होगा? देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप लोग। पहले तो कोलाइड कौन कर रहा है? स्टूडेंट्स, ये ही कर रहा है। तो शॉर्टकट क्या है? आपको फाइंड क्या करना है? बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग, लास्ट में कौन मूव करेगा? लास्ट 8m। टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। p% लॉस कितना है? p%। अभी परसेंटेज एरर की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा k बाई के। परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है? डेल्टा k बाई के। परसेंटेज दिया हो तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा के बाई के। अभी स्टूडेंट्स ये डेल्टा के बाई के आपको पता है, डेल्टा के बाई के फाइंड करना है। के मींस व्हाट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में तो यही ब्लॉक मूव हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? हाफ mv²। तो के तो पता है आपको, हाफ mv²। अभी क्या फाइंड करना है? सिर्फ आपको डेल्टा के। चलो, तो यहाँ पे परसेंटेज दिया था p%, तो p% मींस व्हाट? डेल्टा के बाई के। डेल्टा के मींस लॉस, ये के क्या है? इसको हम बोलेंगे परसेंटेज लॉस। परसेंटेज में आंसर दिया है तो क्या बोलेंगे इसको हम? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस की फॉर्मूला क्या होती है? डेल्टा के बाई के। उसमें के क्या होता है? ओरिजिनल। ओरिजिनल में तो कौन सा ब्लॉक मूव हो रहा है? ये फर्स्ट वन, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अभी देखो, अभी हमें डेल्टा के फाइंड करना है। के तो मिल गया, हाफ mv²। डेल्टा के मींस लॉस। लॉस मींस डेल्टा के। परसेंटेज लॉस हो तो डेल्टा के बाई के, ये परसेंटेज लॉस है। देखो, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस हो तो डेल्टा के बाई के। अभी डेल्टा के फाइंड करो। चलो, क्या होगी डेल्टा के की फॉर्मूला? हाफ, तो आपके पास दिया क्या हुआ यहाँ पे? डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू क्या दिया है स्टूडेंट्स? p% दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू p% ऑफ के। डेल्टा के की फॉर्मूला क्या थी? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2, ये p% मींस p बाय 100। चलो, ये मैंने डेल्टा की फॉर्मूला लिख दी, ठीक है। चलो, अभी क्वेश्चन है सर इसमें से हम m1 कौन सा लेंगे? तो m1 क्या लोगे? m1 फर्स्ट कौन सा ब्लॉक मूव हो रहा है? स्टार्ट किसने किया? इसने स्टार्ट किया, तो इसका मास है वो हम m लेंगे। फाइनल मास में सब क्या हो गए? सब m2 क्या लोगे? ये शॉर्टकट है, पता चलो ये शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, बनना ये क्वेश्चन एक पेज का होगा। फाइनल में सभी कंबाइन हो गए। स्टार्ट किसने किया? m1। स्टार्ट किसने किया? ये ब्लॉक ने स्टार्ट किया, तो उसका मास क्या है? m। फाइनल में सभी कंबाइन हो गए। क्यों सभी कंबाइन हो गए? क्योंकि ऑल द कोलिजन आर इनइलास्टिक। तो फाइनल में सब कंबाइन हो गए, सभी, ये 5, ये 5 कंबाइन हो गए। m प्लस m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 8m। m2 में, फाइनल में ये m2 में सब कंबाइन हो रहे हैं, तो हम सभी का मास ऐड कर दो। 2m 4m
8m 16m। ठीक है, चलो अभी प्लेस करो आंसर। हाफ m, व्हाट इज m2, व्हाट इज m2, क्या लेंगे हम, 16m हो गया। चलो m प्लस 16m, इनिशियल ये ब्लॉक मूव हो रहा है कितनी स्पीड से, v, बाकी सब तो रेस्ट में थे इनिशियल में। u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल में ये सिर्फ ब्लॉक m ही मूव हो रहा है कितनी स्पीड से, v, वरना तो सब रेस्ट में थे। u1 u2 इनिशियल होता है, इनिशियल में बाकी है तो सब रेस्ट में है। और v k मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ये याद रखना, अगर लॉस दिया है तो डेल्टा के लेना है, परसेंटेज लॉस दिया है, परसेंटेज लॉस दिया है p%, तो डेल्टा के बाई के लेना है। हाफ कैंसल, एक mb यहां से कैंसल, चलो फिर v स्क्वायर भी कैंसल हो जाए, क्या बचेगा अभी 16m, 16m बाई 17m, v स्क्वायर p बाई 100, p बाई 100। हमें क्या फाइंड करना है, p, ये देखो फाइंड क्या करना है आपको, ये p फाइंड करना है। चलो मिल गया p, mm कैंसल, v स्क्वायर भी कैंसल, 16 बाई 17 अप्रोक्स होता है 0.94, या तो आप पता चल जाएगा ये 94, तो p क्या हुआ आपका 0.94 इंटू 100। तो चलो कौन सा आंसर आया, ये। चलो ये स्टूडेंट्स आपको दो क्वेश्चन ट्राई करना है, ये भी वापस सेम क्वेश्चन है, ऑल द कोलिजन आर इनइलास्टिक प्रीवियस, जो कि सेम ही है क्वेश्चन, ये भी ट्राई करो होमवर्क में, और ये एक पहले मैंने आपको बोला ही था। चलो तो ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, और अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो होगा इम्पल्स। तो बिफोर सब ये कोलिजन है पूरा रिवाइज कर लो, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्पल्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।